Hello student, I Jiddat Goswami welcome to you commerce classes. In last video we had discussed about the introductory part of accounts, why it is necessary to learn. And now in this video number 2 we will going to learn about the lesson number 1. Before starting lesson number 1 we will understand about the contents. In first part you have to learn total 11 lesson. Here lessons is given lesson number 1 accounting and its terminology. Terminology means some terms are there which you need to learn in accounting language. Number 2, dual effect of transaction and types of account, how many types of accounts, which you will learn in second lesson number 2. Then effect of transaction, how many effect occurs in business transaction, this we will learn about the next lesson number 3. Introduction to goods and services tax, this lesson new for you. Lesson number 4, journal is a very most important lesson. It's a fundamental lesson, main basic fund of this account. If you learn properly this lesson, you will get proper knowledge of account. Then lesson number 5, accounting equation and business transaction. Number 6, subsidiary books. Number 7, cash book and its types. Then lesson number 8, journal proper. Lesson number 9, ledger posting. Lesson number 10, trial balance and bank reconciliation statement. This is what all about part 1. So here we will start lesson number 1. This is only theory based and which is very important for you to learn and makes your funda clears, because this lesson and the language of account is teach lesson number 1. So this is your lesson number 1, accounting and its terminology, where in we will study about the introduction, we already did. Then accounting, characteristics of accounting, objectives of accounting, benefit and advantages of accounting, limitations of accounting. 7 numbers है आपका qualitative characteristics of accounting, users of accounting and their needs, terminology of accounting, types of account and steps to prepare accounts. These things we will learn in this lesson number 1. This is a theory based lesson, and after second lesson and after first lesson we will learn some practical lessons like 2 3 lesson number 3 4 and remaining all lessons. So here in this lesson number 1, accounting terminology, first term which I had discussed you before, accounts, accounting, accountancy. This I already explained you before in video number 1, and now in this video number 2 I will discuss with you characteristics of accounting. So here characteristics of accounting, what is the other name of characteristics? We can attribute, we can say elements or characteristics. Okay, number 1, financial characteristics. Financial characteristics means what? Means here whatever transaction or whatever events which are recorded in accounting मस्ट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन कैश में करते या तो क्रेडिट में करते, और जो भी इवेंट्स होती है ट्रांजेक्शन और इवेंट्स विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. मीन्स वो जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको पैसे में हम उसको नाप सकते हैं, ऐसे होने चाहिए. मतलब विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और विच कैन बी एक्सचेंज between against the goods, against the product, against the commodities, right? For example, here 10,000 kg of chemical is purchased, right? 10,000 kg of chemical is purchased. The value of this purchase has to be determined on in terms of money. Means ये जो आपने 10,000 का chemical, जो 10,000 kg of material आपने केमिकल्स जो आपने परचेज किया है उसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस परचेज हैज़ टू बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ मनी. This chemical is purchased for rupees 20,000, which means that is 10 kg chemical is equal to rupees 20,000. Means आपको 10,000 kg का आपको केमिकल परचेस करने के लिए आपको उसके कितने पैसे देने पड़ेंगे? 20,000. केमिकल मिल जाएगा, गुड्स यू विल गेट, एंड exchange of money will be
there. In exchange of chemical rupees 20,000 are payables, means आपको कितने पे करने हैं. In exchange of chemical rupees 20,000 are payable. रुपीज़ इज़ मनी, रुपी जो है आप दे रहे हो वो क्या है, मनी. एंड ट्रांजेक्शन मेड थ्रू मनी इज़ नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. वॉट एवर ट्रांजेक्शन मेड थ्रू मनी इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एंड वॉट एवर ट्रांजेक्शन इज़ नॉट मेड थ्रू मनी विच इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू हेल्प एज अ वॉलेंटियर इन COVID-19, as a volunteer you provide services without any financial return. ठीक है, आप कोई फाइनेंशियल रिटर्न से कोई आप से सर्विसेज कर रहे हो उसको नॉन इकोनॉमिक, और जिसको आप पैसे दे के या तो कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करके आप जो कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 2, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. सो हाउ मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हियर transactions and events are recorded in accounting come into existence through the usage of money, right. And money as a exchange will be, money as an exchange will be received by seller rupees 10,000. मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि 10,000 kg ऑफ मटेरियल सेलर ने सेल किया और बायर ने बाय किया. मतलब सेलर सेल द गुड्स एंड बायर buy the goods. Between them exchange of money as a medium of exchange is possible. Means second characteristics we can say money as a medium of exchange. यहाँ पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सेलर ने कितने का केमिकल सेल किया है, 10,000 किलोग्राम का, राइट. इस केमिकल इज़ अ प्रोडक्ट एंड sale of chemical for rupees 20,000. Sale of chemical rupees 20,000 means 20,000 is a money. Then purchased of any commodity or services by rupees 20,000. मतलब कि ये 20,000 में जो सेल किया है मटेरियल, मतलब केमिकल जो भी सेल किया है सेलर ने, उसी 20,000 से वो कोई भी गुड्स परचेज कर सकता है, राइट. फिर ये है, ये नंबर 2 हो गया आपका. दैन नंबर 3, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स. सो हाउ क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी एंड एनालिसिस इज नेसेसरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स. सो आई लाइक टू से in accounting different types of transactions are recorded, right. Cash transaction, non cash transaction. These transactions are made in cash form or non cash form, right. इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैश फॉर्म और नॉन कैश फॉर्म, और वी कैन से क्रेडिट ट्रांजेक्शन. दिस ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म्ड फॉर एनी इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स और लाइबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी. मीन्स ये जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो किसके पर बेस होते हैं, या तो कोई एक्सपेंस करते हो, या तो कोई इनकम होती है, या तो कोई इसमें एसेट्स होती है. एसेट्स मीन्स अपनी जो जायदाद मिल्कत उसको, राइट. ये अकाउंटिंग का एक टर्म्स है, लैंग्वेज है. इनकम एक अकाउंट की लैंग्वेज है, एक्सपेंस अकाउंट का लैंग्वेज है. एसेट्स मतलब आपकी जायदाद मिल्कत, वो आपका क्या है, एसेट्स. लायबिलिटी मीन्स आपको किसी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी मीन्स आपकी जवाबदारी है, क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स अ लायबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी. कौन सी, कैश. कैश इज़ अ लायबिलिटी बेस्ड और एक्सपेंस बेस्ड, इनकम बेस्ड. आप बिजनेस करते हो तो एक्सपेंस होता है, इनकम भी होती है, एसेट्स भी आती है, लायबिलिटी भी होती है. तो ये क्या है, दिस ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म फॉर एनी इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी. दिस ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एंड analyzed on the basis of their nature which is derived from debit credit rules. Means हर एक जो transactions जो है, दिस ट्रांजेक्शन्स जो भी एक्सपेंस है, इनकम है, या तो असेट्स है, या तो लाइबिलिटीज़ है, उसको क्लासिफाइड किया है, ये उसको एनालाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उस तरह से उसको क्या किया है, क्लासिफाइड किया है. फिर क्या बोला है आपको उसके बाद, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस transactions of prescribed time can be seen together at one place. For example, what was opening balance of assets, how many assets were purchased, how many assets were sold, what is the closing balance of assets. Answers of all these questions are obtained because of classification and analysis. मतलब कि
क्लासिफिकेशन और एनालिसिस क्यों करना पड़ता है कि आपके पास कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो कैश में कितने ट्रांजेक्शन किए, क्रेडिट में जो भी ट्रांजेक्शन किए तो वो कितने ट्रांजेक्शन किए, क्रेडिट में किए तो कौन सी बुक में आपने रिकॉर्ड किए, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किए, कैश में किए तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किए, राइट। फिर आप प्रॉफिट करते हो तो आपके पास कितनी एसेट्स है, असेट्स मिल्कत कितनी बढ़ गई, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई, आपके पास स्टॉक कितना हो गया, मतलब आप जो गुड्स को सेल करते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो, उसका स्टॉक कितना हो गया, व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, पहले हमारा असेट्स हमारे पास था उसका पहले उसका बैलेंस कितना था। मान लो कि 1991 में हमने कोई असेट्स परचेज़ की है, कोई एक बिल्डिंग परचेज़ की है 10 लाख रुपीज़ में, तो करंट नाउ इन 2020 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट्स इन 2020, बट ऑब्वियसली 50 और 60 लैक्स, तो उसको एनालिसिस करना पड़ता है। हाउ मैनी असेट्स वर परचेज, कितनी असेट्स मीन वाइल द बिजनेस, मीन वाइल द हमने जो किया है बिजनेस उसमें कितनी असेट्स हमने परचेज़ की है, कितनी एसेट्स को हमने सोल्ड किया है, जो अनयूज्ड एसेट्स है उसको हमने कैसे कितनी एसेट्स को सेल किया है, हाउ मेनी एसेट्स वर सोल्ड, व्हाट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना होता है जब हम बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो 1991 में हमने 10 लाख का असेट्स को एक बार परचेज़ किया था, अब उसको सेल करोगे तो क्या होगा, 2020 में उसका एसेट्स रिवैल्यूएशन हो जाएगा, मतलब उसकी असेट्स बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। दैट इज़ वाई क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस of transaction is necessary, is a one kind of characteristics. Then number 4, interpretation of transaction, right? In accounting only accounts are not prepared, but after accounts are prepared as per the prescribed norm, they are also interpreted on the basis of disclosed detail and figures, which is called as a quantitative information, right? For example, when blood pressure of a person is measured, and if it is comes to 120 to 80, means minimum 80 blood pressure should be there and maximum blood pressure 120 should be there, right? उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर अटैक आ जाएगा. It indicates that the person is healthy from the viewpoint of blood pressure. 120 to 80 is a measure of blood pressure and the comment is healthy is the interpretation, right? तो आपको interpretation देना है, ठीक है. ब्लड प्रेशर आपको एक डॉक्टर के पास गए और आपको बोला कि मेरा ब्लड प्रेशर 80 है और मिनिमम 80 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो लो ब्लड प्रेशर. 120 ज़्यादा हो, 120 तो बराबर है, तो आपका इन दोनों के बीच में है, तो आप एज अ हेल्दी, वो आपका इंटरप्रिटेशन हो गया. सिमिलरली हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया, पर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम क्या कौन सी बात करेंगे, बिज़नेस कर रहे हैं. मान लो कि आपने 2020 में कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किया नोटबुक सेल करने का, आपने पैसा लगाया है बिज़नेस के अंदर, मान लो कि 10 लाख रुपीज़, राइट. तो एक साल के अंदर 12 मंथ के अंदर. अच्छा, अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ. अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को, मतलब 12 मंथ को एडजस्ट करके वो ईयर ख़त्म होता है. फर्स्ट मतलब कि ये फर्स्ट एकेडमिक ईयर आपका ख़त्म हुआ 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021. ये आपका 12 मंथ का एक एकेडमिक ईयर ख़त्म. फाइनेंशियल ईयर भी आपको बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर. अभी आपको कोई पूछे, इफ़ पर्सन आस्क यू देन what is the financial year, what is the academic year, then you have to tell them that your financial year start with 1st April and end with 31st March 2000 whatever year, means 12 months should be adjust year, whatever doesn't matter, year doesn't matter. So your interpretation is necessary. मीन्स आपने बिजनेस के अंदर पैसे लगाए 10 लाख रुपीज़ में, यहाँ पे आपको एक बात कर रहा था, ठीक है, और आपने 10 लाख रुपीज़ लगाए हैं, उसमें से आपका पूरे साल में मतलब 12 मंथ में आपका एक्सपेंस हुआ 5 लाख रुपीज़ का, राइट. मीन्स इनकम से आपका एक्सपेंस कम हुआ,
तो आपका बाकी का कितना बचा, आपका 5 लाख रुपीज़ रिमेनिंग आपके पास एज अ प्रॉफिट बचा रहेगा, उसको हम बोलेंगे बेनिफिट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और भी देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल टोटल इनकम ऑफ ₹20,000 एंड टोटल एक्सपेंस 12,000, द डिफरेंस 8,000 इज एक्सेस इनकम ओवर द एक्सपेंस। अभी मैं आपको एक घर का भी एग्जांपल दे दूंगा। पप्पा की, आपकी फादर की सैलरी मान लो कि 50,000 है, 50, और अब जितने पैसे होते उतने खर्च कर देते हो? नहीं। क्या करते हो, जितने चाहिए उतने करते हो, खर्च करते हो, एक्सपेंस करते हो, बाकी के पैसे एज ए सेविंग्स बैंक में रखते हो। मान लो कि 50,000 की सैलरी है, उसमें से 20,000 मंथली आपका एक्सपेंस हो रहा है। तो क्या है, 20,000 एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो आपका रिमेनिंग बेनिफिट कितना पड़ा रहा आपके पास? 30,000 इज़ योर बेनिफिट। मीन्स आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है एक्सपेंस, मतलब कि आपका 30,000 इज़ द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंस। दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन, आपको इंटरप्रिटेशन देना पड़ता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 है आपका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मीन्स हाउ इट इज़ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन अकाउंट in accounts is in the monetary form. So this information is known as a quantity। मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, it should be measured in terms of money, it is called quantitative information। then उसके बाद है नंबर 6, इकोनॉमिक डिसीजंस। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टेक्स देयर डिसीजंस बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग। ठीक, क्या करते हैं डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर किसको बोलते हैं? जो बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हैं। टेक देयर डिसीजंस, वो लोग अपने डिसीजन बेस्ड ऑन अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसके बेस पे जो स्टेक होल्डर है, मतलब शेयर होल्डर्स जो है, वो क्या करते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्रेडिटर्स मेक्स डिसीजन टू लैंड मनी टू द कंपनी। मतलब कि अभी मैं आपको सिंपली एक बात समझा देता हूँ। इकोनॉमिक डिसीजन किसको बोलते हैं? मान लो कि मैं आज धीरू भाई अंबानी की कंपनी, रिलायंस कंपनी चल रही है, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूंगा? नहीं, पहले तो मैं उसका एनुअल रिपोर्ट देखूंगा 2020 और 2019-20 का उसका एनुअल रिपोर्ट देखूंगा। उसमें कितना प्रॉफिट उस कंपनी ने एक पर्टिकुलर एक साल के अंदर किया है, हाउ मच प्रॉफिट दे अकर्ड इन पर्टिकुलर ईयर। उसके बाद में उसकी जो शेयर है उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट खुद पढ़ोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। और रिलायंस कंपनी के एक एक शेयर की प्राइस आपने देखी होगी कि 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 तक भी है, आप परचेज करना चाहो तो। इकोनॉमिक डिसीजंस मीन्स आप जो कंपनी है, किस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स है? तो रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, विप्रो है, उसके सब। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और उसमें ज़्यादा शेयर होल्डर अपने शेयर परचेज करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग कौन लेते हैं इसमें? जो शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है। मतलब क्रेडिटर्स कौन है? जो कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे देते हैं, वो क्रेडिटर्स है। अगर पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो बिजनेस की जो प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर से क्या करेंगे? हम डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर ही पोटेंशियल शेयर होल्डर मेक डिसीजन टू इन्वेस्ट देयर फंड। पोटेंशियल शेयर होल्डर, पोटेंशियल मीन्स जो शाश्वत है, मीन्स वो टिके रहे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी हम उसको कहते हैं। वो भी डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्ट देयर फंड्स, वो इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं। तो इकोनॉमिक डिसीजंस ये एक अकाउंटिंग के पर डिपेंड करता है। अगर आप अकाउंट्स अच्छी तरह से मेंटेन करते हो तो आपकी बिजनेस की इकोनॉमिक डिसीजन पता चलेगी। उसके बाद है उस कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर आपका है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 7 है इन अकाउंटिंग ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन, जो पास्ट में हमने किए वो सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। दिस पास्ट ट्रांजेक्शन्स और इवेंट बिकम्स हिस्ट्री, राइट। मतलब जो पास्ट में आपने बिजनेस किया है, मान लो कि 2018 और 19 में बिजनेस किया है और आपने एक्सपेंसेस और इनकम का हिसाब करके रखा है, तो आप दिखा पाओगे कि देखो भाई हमने ये लिख के रखा है। तो आपके जो पहले के रिकॉर्ड है, आपने जो हिसाब रखा है, अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, अभी मैं अकाउंट्स ही बोलूँगा,
ठीक है, अकाउंट्स आपने जो मेंटेन किए हैं विच विल बी हेल्प टू इन द हिस्ट्री, राइट। और मान लो कि टाटा कंपनी ने 2018-19 में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो इट्स अ हिस्ट्री मेकिंग, राइट। उसके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो पता चलेगा ना, ऐसा थोड़ी ना पता चलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ऐसे इन अकाउंटिंग ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, दिस पास्ट ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स बिकम्स हिस्ट्री, पास्ट ऑलवेज डिस्क्लोजेस हिस्ट्री, राइट। I think you getting me. Past always discloses history. Accounts prepared on the basis of history represent historical information and results. मतलब लास्ट में हमने, मतलब जो आपने हिस्ट्री में, मतलब पहले आपने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं और अभी भी आप मेंटेन कर रहे हो, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। देन दस अकाउंटिंग हैज़ रिलेशन विद हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स को किसके साथ रिलेशन है? हिस्टोरिकल, मतलब आपने पहले भी मेंटेन करे थे और अभी भी आप कर रहे हो। तो ये एक आप अकाउंटिंग के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आप फ्रॉम द वेयर दिस प्रोसेस कमेंस, ये अकाउंटिंग की प्रोसेस कहाँ से आई वो हम देखते हैं। और दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन explain the process of accounting from the where this process commenced, from which stage does it pass, what is what is derived from each stage, what is derived at the end of the process. Definition and characteristics present information about all these issues, right? So before I explained you definition of accounting, right, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at list of financial character and interpreting the results thereof, which I already explained you. And from this definition characteristics is made. So your accounting cycle is given. फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको आप रिकॉर्ड करोगे। देन क्लासिफिकेशन, ये आपको याद रखना है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन या तो क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, कंक्लूजिंग, इंटरप्रिटेशन, आपको इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट में आपको देना पड़ेगा रिपोर्ट। रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा, मतलब कि एक एनुअल रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। किसको दिखाना पड़ेगा? टू दी यूज़र्स, जो अकाउंट को यूज़ करते हैं, जो कंपनी के बारे में जानते हैं, उसको आपको एक रिपोर्ट बना के देना होगा। तो ये आपका हो गया एक अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रोसेस भी दिया है। देखो आप, अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड फॉलो identification of transactions and events and their measurement in money, means input of transaction and events, जो भी ट्रांजेक्शन हो गए उसको आपको आइडेंटिफाई करना है उसको, और इवेंट्स को जो इनपुट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। देन रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करना है। क्लासिफिकेशन, कंक्लूजन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग, प्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हो, ये प्रोसेस है। पहले रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई, कंक्लूजन, एनालिसिस, इंटरप्रिटिंग एंड फिर एंड देन लास्ट में प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो यूज़ करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो उसको हमें क्या बनाना है? एक रिपोर्ट बना के देना है, ताकि उसको पता चले कि हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हियर? सो फर्स्ट नंबर वन ऑब्जेक्टिव इज़ नंबर वन इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड्स, राइट। अकाउंटिंग क्या है? एक परमानेंट रिकॉर्ड है। एक तो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव को हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, राइट। परमानेंट रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन रिटर्न फॉर्म। जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं हम उसको क्या करते हैं, हम इवेंट्स जो होते हैं उसको हम रिटर्न फॉर्म में रखते हैं, ताकि बेनिफिट जो हमें परमानेंट बेसिस पे रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो तो हम उसको दिखा सकते हैं, वी कैन शो। These records are kept either in the forms of books or records in the computer or permanent basis. आप किस में रख सकते हैं? या तो either in books or we can say in computer.
Second, objectives to know the effect of each transaction, right? So here, each transaction has its effect on overall profitability or economic condition of the business. Thus, accounting help in obtaining this information, right? So that is why the to know the effect of a transaction, मतलब ट्रांजेक्शन जो हुए हैं आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे ऑफ द बिजनेस, तो उसको टू नो, उसको जानने के लिए टू इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर नंबर 3 है आपका टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। ओके, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स मीन्स मतलब कि आप जो भी प्रॉफिट, the information of factors affecting profit or loss as well as economic condition of the business can be obtained by preparing accounts। मतलब आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसको जानने के लिए आप एक अकाउंट्स बनाते हो, राइट? टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आपको बिजनेस में, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसको जानने के लिए आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो। फिर उसके बाद है टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी, राइट? आप जानते हो जो भी बिजनेस करते हैं उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। हम डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स? टैक्स मीन्स कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब आप जो यूज़ करते हो गवर्नमेंट, मतलब आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, मतलब आपकी हिंदी में बोला जाए, प्योर हिंदी में टैक्स मतलब क्या होता है, एक संस्कृति को सुधारने का खर्च। तो आप जो इनकम करते हो और उसी इनकम का आप टैक्स पेमेंट करते हो और वो गवर्नमेंट की इनकम हो गई, और उसी इनकम से गवर्नमेंट क्या बनाएंगी, रोड है, फिर लाइट्स है, कोई गवर्नमेंट हाउस है, या तो फिर क्या बोलते हैं ऐसा ब्रिज है, गार्डनिंग है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है आप जो टैक्स पेमेंट करते हो। तो टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी मतलब आप कितना टैक्स पेमेंट करते हो, अकाउंट्स मेंटेन करते हो, उससे पता चलता है। सो जनरली द टैक्स पेमेंट लायबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयर अकाउंट। द बर्डन ऑफ टैक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ टैक्स पेयर्स, राइट? कितनी इनकम होती है उसका, मतलब अगर डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है तो कितना टैक्स पेमेंट करती है, उसके स्लैब रेट डिफरेंट डिफरेंट है। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के जो स्लैब रेट है, फिर टीचर्स जो है जो पेमेंट करते हैं टैक्स, उसके भी टाइप डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस है। तो टैक्स कितना आप पे करते हो, द बर्डन ऑफ टैक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम of taxpayer। Therefore the objective to prepare accounts in determine tax liability मतलब आपको कितना पेमेंट टैक्स का करना है। फिर है उसके बाद टू नो क्वांटम ऑफ पेबल्स। क्वांटम ऑफ पेबल्स मतलब साइज ऑफ पेबल। आप बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना आप हर एक चीज़ कैश में खरीदोगे, हर एक चीज़ कैश है, आपने क्या करोगे, उधार से मतलब क्रेडिट में पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट करोगे, राइट? इन बिजनेस इन प्लेस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल्सो मेड। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में होते हैं, मतलब आप पहले तो क्रेडिट में परचेस रॉ मटेरियल करते हो, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। हाउएवर दिस पेमेंट इज़ टू बी मेड इन फ्यूचर, मतलब जो भी आप फ्यूचर में पेमेंट करते हो, टिल द नॉन पेमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इट इज़ ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। मतलब आप जो भी गुड्स कोई परचेस करते हो रॉ मटेरियल क्रेडिट पे और उसका पेमेंट फ्यूचर में करते हो, तो टिल द डेट ऑफ पेमेंट इट्स बिकम लाइबिलिटीज क्वांटम। मतलब आपको कितना पैसा पेबल्स करना है, देना है, आपको पेमेंट करना है, उसके लिए आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, ठीक है? फिर नंबर 6 टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल मतलब आपको किसके पास से कितने पैसे लेने हैं। आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हो बीइंग ए ट्रेडर्स। अब आपको यहाँ पे मैं एक बात समझा देता हूँ। फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग्स, वेन एवर यू मेंटेन अकाउंट और वेन एवर यू प्रिपेयर अकाउंट यू जस्ट एज्यूम दैट यू आर द बिजनेसमैन और यू आर द ट्रेडर्स, राइट? जब आप अकाउंट्स कर रहे हो तो आप यही सोचना है कि आप बिजनेसमैन हो, आप ट्रेडर हो। तो रिसीवेबल्स मतलब आपको किसके पास से पैसे मिलने वाले हैं। हमने किसी को अब मैं ट्रेडर हूँ, मैंने किसी को 10,000 का गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे, मतलब बोलेगा सर मैं 1 महीने के बाद दे जाऊँगा, मतलब क्रेडिट सेल हो गया।
तो रिसीव मतलब मुझे 1 महीने के बाद उसके पास से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल्स मतलब, राइट। अकाउंट्स मेंटेन करने से हमें पता चलता है कि कितने रिसीवेबल्स हैं। लाइक क्रेडिट परचेज, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, this amount is receivable in the future until the non receipt of this amount is known as the in the books as receivable. This information can be obtained. Okay, next objective is to measure profitability of business, right? हर एक बिजनेस हम करते किस लिए करते हैं? प्रॉफिट, मतलब एक साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ उसका हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। To measure profitability of business, the significant objective of accounts is to measure earned profit or incurred loss for the respective period, right? मतलब हमने एक साल में in respective period how much profit we earned, how much loss we incurred. The measurement of profitability is made available by accounting, means यही एक बेनिफिट है अकाउंटिंग को मेंटेन करने का, ऑब्जेक्टिव है, उससे पता चलता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। उसके बाद नंबर है 8, टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस, मीन्स अगर आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल ऑफ सी इन द गारमेंट्स, there are so many garment store in the Valsad, Abhinandan and Mangaldeep, and biggest customers are going in the Rajwadi. Rajwadi is the biggest garment place where all the Daman, Vapi, Valsad, all the customer are visited every now and then. So status आपका कैसा है? To know this economic status of business, right? At the end of the year, what is the size of liability, right? Assets and receivables of the business can be seen from the accounts under accounting system. When assets and receivable are more than the liabilities, it can be said that good economic condition, मतलब कि एक साल आपका एंड होता है तब ईयर एंडिंग में आपको पता चलता है कि आपकी असेट्स पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। आपकी रिसीवेबल मतलब आपको कितने लोग के पास से कितना पैसा लेना है, मीन्स असेट्स एंड रिसीवेबल्स आर मोर देन द लायबिलिटीज़, मतलब आपको किसी को पैसे देने से ज़्यादा किसके पास से पैसे लेने हैं, ठीक है। तो उसको जानने के लिए तो आपका मार्केट में स्टेटस बढ़ेगा। व्हेन असेट्स एंड रिसीवेबल्स आर मोर देन the liabilities, can be said that the good economic condition. So economic condition which is known as a solvency can be known from account. So these are the objective. status को create करने के लिए अभी रिलायंस है, रतन टाटा है, वो अभी रतन टाटा ने कोरस कंपनी के साथ 54,000 करोड़ का बार्गेनिंग किया। मतलब एक लंदन की जो कंपनी है उसको इंडियन कंपनी ने, स्टील कंपनी है, मतलब रतन टाटा 54,000 करोड़ किसको देंगे? फॉरेन कंपनी को। एक साइन पे, एक साइन करेगा रतन टाटा, मतलब उसको दे देने हैं 54,000 करोड़ किसको? कोरस कंपनी को। तो रतन टाटा की जब इतनी असेट्स होगी, उसकी उतनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी, तभी उतने बिजनेस को वो बाई कर पाएंगे। स्टेटस अच्छा होना चाहिए, उसी लिए हम क्या मेंटेन करते हैं? अकाउंट्स। और जो भी अकाउंट्स हम वॉट एवर अकाउंट्स वी विल लर्न फर्दर विच इज़ प्रैक्टिकली अप्लाई इन नाउ प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, राइट। ये सभी चीज़ अप्लाई होती है एवरी डेज बिजनेस के अंदर। तो ये हमारा हो गया आज का पोर्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ होगा। वन मोर ऑब्जेक्टिव्स आर लेफ्ट, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड। अच्छा, लास्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है, मतलब कि टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड फ्रॉड। जो भी एरर आते हैं बिजनेस के अंदर या तो फ्रॉड होता है, तो उसको पता चल जाए, डिटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। मतलब कि बाय इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर्ड अकाउंट्स, फाइनेंशियल मिस्टेक्स और क्राइम कैन बी ट्रेस्ड आउट। क्या कर सकते हो आप? क्राइम कैन बी traced out. Accounting helps to prevent such kind of undesirable events. Undesirable मतलब कि जो फालतू की एक्टिविटीज़ होती है,
राइट. अकाउंटिंग मेंटेन्स इनडायरेक्ट कंट्रोल टू अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड. अकाउंटिंग क्या करती है? मेंटेन मतलब जो एरर्स और फ्रॉड करते हैं उसको अवॉइड करती है. अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर अबोव मेंशन पर्पस. There are several benefits due to the existence and use of accounting. These are discussed as follow. Right. So ये सारे बेनिफिट है और ऑब्जेक्टिव से इसके बाद हम जो देखेंगे वो एडवांटेजेस और वी कैन से बेनिफिट मेरिट्स हम डिस्कस करेंगे.